Hi, everybody. Welcome to Success Series. A very warm welcome and good evening to all of you all. We are going to do money and credit chapter in today's lesson. As you all know, money forms the essence of whatever we do today. That means money is a very very important denomination जो कि हमारे डेली लाइफ्स में हम लोग यूज़ करते हैं. तो we will understand everything about money. We will understand the ways by which we can hold money. Money के नहीं रहने से हमें क्या दिक्कतें हो सकती थी. Some of its features and who authorizes its use. What is the value that we attach to that note by which we can almost buy anything and everything in this world. And beyond money जो हमारे पास credit होता है where the banks step up, we are also going to understand about this concept. So it's a very very important chapter, especially coming in economics. It's very important because without money there is no economy, right? So economy is all the play that has got to do with your money into consideration. So let's see what is the chapter explanation and let's understand all the important things from here. इस चैप्टर में आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. यू विल लर्न अबाउट द फॉर्मल सेक्टर लोन, इनफॉर्मल सेक्टर लोन, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्टर्स. सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे थ्रू द कोर्स ऑफ दिस explanation video. Before that, I have a very very important announcement which I usually make, and by now whoever is following it will know of this kind of feature. So class 10 के बच्चों के लिए हमारे पास lesson explanations है, video lessons है, MCQ links है. These are all available free of cost for the students. What you can do is you will go to the description box, you will find a lot of PDFs that are there. These are absolutely free of cost. As I mentioned, you will download the PDFs and you will prepare accordingly. So please see examsuccess.successcds.net. यहाँ पे आपको ये सारे मटेरियल मिलते हैं. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स है में है. Do not forget to check them out. These are all available for you. Coming to the first thing that we learn today is money as a medium of exchange, or what is basically money. So money is something that serves as a medium of exchange. What is a medium? Medium is एक रास्ता, right? So money is never stable. It is not that it is your money today and it is going to remain yours throughout. No. You will exchange that money for something else that has value to you. So it also acts as a store of value and it acts as a unit of account. So money के तीन रूल्स हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि उस मनी की कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिससे आप उसके इक्विवेलेंट का सामान खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नो दैट अ कार कॉस्ट्स अस 25 lakhs. So कार की वैल्यू 25 lakhs है and money is its measure, right? Because we will be buying it in terms of money. Similarly, a chocolate can cost you 5 rupees and that chocolate is purchased with the help of that money, which is a store of value or a measure of value. And it is also a unit of account क्योंकि आप उस फ्रेम में उसे put up कर पा रहे हैं that this is the unit that we have for so and so thing. सो व्हाट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें मनी की आज ज़रूरत होती है. इट्स नॉट ओनली गुड्स दैट यू बाय विद द हेल्प ऑफ मनी बट ऑल्सो सर्विसेज. जब हमने जीडीपी देखा था तो हमने देखा था कि इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को एक तो एक्सक्लूड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और इसके अलावा हम लोग सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं. जीडीपी इज़ नॉट जस्ट गुड्स. अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अगर आपके पास मनी नहीं रहती तो वी वर यूजिंग समथिंग दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट 2 cows. ओके, सो आई हैव टू गेट इट फ्रॉम द पर्सन who has cows, but in exchange of that I deal in biscuits or shoes. Okay, so for those 2 cows I need to give equivalent number of shoes to the other person. लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डबल कोइंसिडेंस की, कि जिस समय मुझे कोई चीज़ चाहिए उस समय जो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उनको वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास हो. सो दिस इज़ बार्टर सिस्टम वेयर बाय यू आर एक्सचेंजिंग गुड फॉर अ गुड. तो जब हमारे पास मनी नहीं रहती है वी लुक फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि अगर आज मुझे काऊ चाहिए तो नॉट नेसेसरी कि जिसके पास वो काऊ है ही वॉन्ट्स द सेम प्रोडक्ट दैट आई हैव. ही माइट वॉन्ट समथिंग एल्स.
that will be available with somebody else. So in order to carry out that transaction it becomes very difficult क्योंकि एक common denomination नहीं है. लेकिन today we have money. Almost anything that you want to pick can be picked up because we have money as a common denominator. Without money, all transactions would have to be conducted by barter, which involves direct exchange of one good or service for another. यहाँ पे आप कोई गुड परचेज करके मनी नहीं दे रहे हो या कोई सर्विस अवेल करके मनी में नहीं पे कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू टेक दैट गुड और सर्विस बाय डायरेक्टली एक्सचेंजिंग सम गुड और सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर के पास जाना चाह रही हूँ अंडर बार्टर सिस्टम. When I am availing of doctor's facility, if I am a teacher, the doctor should want a teacher. कि भाई डॉक्टर ने हमें इतनी की सर्विस दी, अब उनको इन रिटर्न हम क्या देंगे फॉर हिज सर्विस? वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ वैल्यू. अब रुपए तो है नहीं, वी डोंट हैव मनी, सो हाउ डू वी ब्रिंग इट एट पार? सो वी विल ट्राई टू गिव द सर्विसेज दैट वी हैव provided that the doctor is in need of it. अब डॉक्टर तो खुद पढ़ के बैठे हैं, he already has a degree, why would he require a teacher? Let's just take it on at very basic level. He might require, there may be doctors who require teachers, or it will always be the other way around. But what if he did not? What if he's already having everything to himself? सो इन दैट केस वो एक्सचेंज बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो वहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉल हो जाता है, और अगर ये सारी स्टॉलिंग आने लग जाए तो एक इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी. दैट इज़ वाई एक कॉमन डिनोमिनेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विच मनी हैज़ ट्राइड टू फुलफिल. तो देखिए, इन अ बार्टर सिस्टम डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर, कि एक को इंसिडेंस होना चाहिए कि दोनों लोगों को वही चीज़ें चाहिए जो एक दूसरे प्रोवाइड कर रहे हो. इन कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे एक इकोनॉमी है जहाँ पे मनी यूज़ हो रहा हो, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब अगर मैं बिस्किट खरीदने जाऊँ, इट डज़ नॉट मैटर कि बिस्किट खरीदने वाले को मेरे पास जो है उसकी ज़रूरत है कि नहीं. I will directly pay him in money, and this money he can use today, tomorrow or later to purchase anything that he wants. Right? So it is no longer necessary कि कोई एक शू मैन्युफैक्चरर को एक फार्मर ही ढूंढना पड़ेगा जो उनके शूज़ खरीद ले ताकि उसको वीट मिल सके. सो देर वॉज एन एग्जाम्पल इन योर चैप्टर जहाँ पे एक पर्सन हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग शूज़, इसको ज़रूरत पड़ी वीट की. अब वीट लेने के लिए इनको तो एक फार्मर को अप्रोच करना होगा, बट द फार्मर शुड बी विलिंग टू बाई शूज़. उनको शूज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो वीट देंगे तो फिर वो खुद क्या लेंगे, तो इसके पास तो शूज़ है. तो हियर bringing all of that into consideration and executing it becomes a tedious task. So this is all about money at the first, and then you have money as a medium of exchange. Unit of account भी आपको पता चल गया, store of value, because with that money you can definitely buy something that has value. अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं तो आप 50 रुपीज़ की वैल्यू उससे खरीद सकते हो, 100, 200, 2000, whatever it is. So now these are the new notes that you see, and this is how money comes into the circulation. Now modern forms of money. Before the introduction of coins, बहुत सारे objects ऐसे थे जिनको हम money की तरह इस्तेमाल किया करते थे. For example grains, for example cattle. इनको exchange किया जाता था in terms of money. उसके बाद हमने एक प्रॉपर मेटलिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, जो कि आज भी आपको देखने को मिलते हैं. एंड दिस कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. सो देयर हैज़ बीन अ ट्रांजिशन फ्रॉम यूजिंग सर्टन काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज मनी एंड देन प्रिंटिंग मनी और करेंसीज. अब मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मनी है जो कि आप यूज़ में देखोगे. एक हो गया आपका मेटलिक मनी विच आर योर कॉइन्स. एक आपका हो गया पेपर मनी विच इज़ दिस, ओके, एवरीथिंग इज़ रुपया. देन यू कम टू क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी के टाइम पे आपको बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखना पड़ता है. दिस इज समथिंग दैट एक्ट्स एज मनी बट इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट दैट वी सी. आपको रुपए की ज़रूरत है, आप क्रेडिट ले सकते हो. इट विल हेल्प यू गेट द वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर. आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है 10 lakhs की, आप क्रेडिट ले सकते हो. यू कैन यूटिलाइज दिस. इट विल फेच यू द प्रॉपर्टी ऑफ 10 lakhs थ्रू क्रेडिट, बट इट इज़ नॉट योर मनी इन हैंड.
अब ये जो पहली दो काइंड्स ऑफ मनी है जैसे कि मेटेलिक एंड पेपर, ये आपकी करेंसी मनी हो गई, एंड लास्ट वन जो आपकी क्रेडिट है वो आपकी बैंक मनी हो गई. नाउ वी कम टू करेंसी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जिनमें कि आपके पेपर नोट्स और कॉइन्स काउंट किए जाते हैं. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. आप old age days में देखोगे कि बकायदा gold coins, silver coins एंड कॉपर कॉइन्स जिनके खुद ब खुद एक वैल्यू थी, इन मेटल्स की वैल्यू है, तो इनकी जब वैल्यू थी तो डेफिनेटली इनके कॉइन्स की वैल्यू हो जाती थी. अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज़. लेकिन ग्रेन और कैटल जो थे उसके पहले ये आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज़ थे. बट अगर आप आज की मनी को कंपेयर करोगे तो ये दोनों चीज़ आज की मनी में नहीं है. फॉर एग्जांपल जो कॉइन्स आज हम यूज़ करते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे तो कुछ नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? ये खुद ब खुद एक कोई रिनाउंड मेटल या फिर वैल्यूएबल मेटल नहीं है, इज़ जस्ट अ नॉर्मल कॉइन. लेकिन वो ऑथराइज्ड है, इसीलिए उनकी वैल्यू बन जाती है एज टू वट एवर इज प्रिंटेड ऑन इट, राइट. दैट मनी इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि वो बस एक पेपर है. अगर ये ऑथराइज नहीं होते तो इट वुड जस्ट बी अ पीस ऑफ पेपर फॉर अस, राइट. इट इज़ नॉट सम ऑब्जेक्ट दैट कैरीज सम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अ गोल्ड कॉइन, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इन एवरी डे यूज फॉर द पीपल. बट स्टिल इट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि एक अंडरलाइंग अथॉरिटी है जो इसे इशू करती है. And it is written on the notes na कि it promised to pay the bearer whatever sum there is. So nobody can refuse payment in a denominator that is money. अगर आज आप जा रहे हो मार्केट में, आपको बिस्किट लेना, एज लॉन्ग एज यूर पेइंग नोबडी कैन रिफ्यूज यू कि नहीं, आई विल नॉट टेक मनी इन रिटर्न एंड आई विल नॉट गिव यू दिस प्रोडक्ट. सो मॉडर्न करेंसी जो है उसकी खुद ब खुद कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमने इसे ऑथोराइज किया है. द RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे हैव ऑथोराइज्ड इट, एंड यू आर इन द पोजीशन कि अगर कोई आपसे नहीं ले तो बैंक आपसे वो रुपए लेंगे, right. So there is somebody who's giving you guarantee for it, and this is the feature of modern currency. अब इसीलिए पूछा जा रहा है कि अगर उसकी खुद ब खुद कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑथराइज करती है. इन इंडिया हु इज़ द फिगर फॉर दैट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करेंसी को रिलीज करती है, एंड इंडियन करेंसी इज ऑल्सो नोन एज INR बिकॉज इट इज़ रुपी. वी कॉल इट रुपी. सिमिलरली अमेरिका में इसे डॉलर कहते हैं, कहीं और इसे पाउंड्स कहेंगे. सो इन दिस वे इट विल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. सो मॉडर्न करेंसी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी खुद से कोई यूज़ नहीं है. इज जस्ट दैट कि देर इज़ एन अंडरलाइंग पार्टी दैट ऑथोराइजेज इट, एंड यू आर इन द position to go and exchange it if somebody refuses to take it from you. That is basically the promise that comes with that note and with that currency. Now we will come to deposits with banks. अब सारे रुपए जो लोगों के होते हैं वो सिर्फ मनी और करेंसी में नहीं होल्ड किए जाते. दे ऑल्सो कीप सर्टेन थिंग्स दैट आर नोन एज डिपॉजिट्स. लोग इसे क्यों रख लेते हैं? एज अ पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स, एंड दे अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस. Who provides this interest? Banks provide this interest at nominal rates. Not very high rates, not very low rates. A deposit account is a bank account maintained by any financial institution, for example, SBI, ICICI, HDFC, etc. Customer यहाँ पे money को deposit कर देते हैं and they can be withdrawn. अगर आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं तो आप उसे फिक्स टाइम के बाद विड्रॉ कर सकते हो. अगर आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो यू विल फ्रीज योर डिपॉजिट्स फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स एंड देन यू विल विड्रॉ इट. डिपॉजिट अकाउंट्स कई टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेविंग्स, करेंट, recurrent. So there are various kinds of accounts that you may open. What you need to understand here is that
economy is not just run by the money that we have in our hands, it also depends a lot with whatever there is in the banks. So hands के अलावा we have certain kind of deposits with banks that also serve as money. क्योंकि आज आपने डिपॉजिट कर दिया, कल को आपको उसकी ज़रूरत है, you can withdraw it, it still has value for you, and आपका मनी सेफ भी रहता है क्योंकि banks are responsible for it. And because you're giving banks the financial capacity to lend that money or to use it for keeping the economy going, they will give you certain amount of interest for it. अकाउंट से आप लोग मनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं, दोज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इस डिपॉजिट को अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली यूज़ करूँगा. दिस डिपॉजिट्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स. Check payments. A check is a document which orders a bank to pay a particular amount of money from a person's account to another individual or company's account in whose name the check has been issued. So यहाँ पे भी ये एक मनी के रोल को फुलफिल कर रहा है. So they are just trying to tell you that there are different ways in which we can exchange all of these things and these are some of the modes for it. तो ये एक चेक है जिसको भी किसी को देना है वो इसे इशू कर देंगे. The receiver will go to the bank and cash it और वहाँ से उनको वो अमाउंट मिल जाएगा whatever is mentioned on the check. So that will also serve like a money to him. It is utilized to make safe, secure and convenient payments. People are located at a distance. So इस तरीके से all these things can be used. Facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. यहाँ पे आप सारी payments को track कर सकते हो. Businesses में it is very very useful to have this. So this is how checks they work. Now we will come to loan activities of bank. What is this loan activity? अब मेरे और आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो सेविंग्स करते हैं बैंक के साथ. सो बैंक के पास देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ पूल्ड इन. अब इस मनी कैपिटल को बैंक क्या करेगी? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सरप्लस है तो वो सेव कर पा रहे हैं. व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनके पास बेसिक भी नहीं है, उनको कहीं से रुपए की ज़रूरत है फॉर लाइक various purposes. People require loans, home loans. People may require car loan. People may require business loans. So अब यहाँ पे जो ये gap है between people who are rich and people who are in need, इस gap को कौन fulfill करता है? Banks fulfill करती हैं. तो जो savings banks के पास आती हैं उनमें से कुछ savings रख के ये एस्टिमेट करके कि भाई कुछ लोग यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, उतना अमाउंट वो लोग रख करके कि दे माइट हैव टू पे देयर डिपॉजिटर्स. उसके अलावा जो भी अमाउंट इनके पास रहता है ये लोग इस पे लोन्स दे देते हैं. दे कीप ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स लाइक कैश. इन इंडिया जैसे कि 15% ऑलमोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स एंड 85% ये लोग अपने एक्सपेंडिचर के लिए मीट करते हैं टू ब्रिज दैट गैप, to provide loans, to provide different kind of facilities to the people who are in need of money. Okay. Banks charge a higher interest rate on loans. अब बैंक क्या करती है? बैंक ने आपको लोन लेंड किया एट 8% ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बैंक होल्डर्स को या डिपॉजिटर्स को कितने इंटरेस्ट दे रही है? मे बी 3.5% सपोज. तो ये जो डिफरेंस होता है between holding money, paying the interest and earning interest, this operates as the profit for the bank and this serves as its income. अब वेरियस बैंक्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं. कुछ बैंक एग्रीकल्चरल हेल्प के लिए रूरल एरियाज में डेवलप होते हैं जैसे कि नबार्ड. कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो मिनिमम प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं. कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं इन दी प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बट दे विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल. सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन अप्रोच द बैंक्स एंड बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स than from what they are giving the interest to their depositors, that difference counts as their income. Now we will come to loans from cooperatives. तो अब बैंक्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप लोन ले सकते हो. सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस कोऑपरेटिव? अब कोऑपरेटिव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कि भाई कुछ एक छोटे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल, इनको ऐसा लग रहा है कि हमें एक कोऑपरेटिव बना लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल दे आर ऑल इन द सेम प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल फार्मर्स या फिर ट्रेड यूनियंस या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ से ये लोग कुछ हर महीने में कुछ अमाउंट को पूल इन करते हैं.
ये कोऑपरेटिव फाइनेंस हो जाता है। अब इनमें से जो 10-15 लोग हैं उन्होंने एवरी मंथ सपोज 3000 दिया, किसी ने 5000 दिया, दैट इज अपॉन देयर अरेंजमेंट। So sorry. Now amongst this 10-15 people, after 2 months, 2 people need some more amount of money. इनके पास तो 3000 1000 ऐसे करके ये लोग डोनेट कर रहे हैं, बट अब इन्हें कुछ ज़्यादा अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़। वो लोग इस पूलिंग से उसे ले लेंगे, वो दे दिया जाएगा, एंड बाद में दे विल repay that to the cooperative with certain amount of interest. So this is a major source of cheap credit in rural areas, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को हेल्प करके चलते हैं। They work on the cooperation principle whereby they pool their resources, and when any member of the cooperative is in need, then that amount is provided to him to make use of whatever he needs. Similarly, there is a name which is Krishak Cooperatives. So it functions in a village which is not very far away from Sonpur. वहाँ पे 2300 फार्मर्स हैं जो कि उसके मेंबर्स हैं। यहाँ से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अपनी मेंबर से। विद दिस डिपॉजिट्स एज कोलैटरल, कोऑपरेटिव हैज़ obtained a large loan from the bank. अब एक और मोडस ऑपरेंडी क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन्होंने ले लिया डिपॉजिट्स लोगों से। अब ये डिपॉजिट्स आ गए इनके पास, अब ये डिपॉजिट से दिखा देंगे बैंक को कि भाई वी विल पे यू इफ़ वी नीड, हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है बट हमें 10 लाख और चाहिए। तो आप इस कोलैटरल के अगेंस्ट, मतलब कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन कि हमारे पास रुपए की दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतने मेंबर्स हैं, इतने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड अस दिस 10 लाख रुपीज़, वी नीड टू बाई सर्टेन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स फॉर ऑल द फार्मर्स दैट बिलोंग टू दिस कोऑपरेटिव। तो इस तरीके से वो लोग एक लार्ज लोन उठा लेते हैं, एंड दिस हेल्प्स द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव। ये जो फंड्स होते हैं इससे लोन्स दिए जाते हैं मेंबर्स को, और जब ये लोन रीपे हो जाते हैं तो फिर दूसरी राउंड ऑफ लेंडिंग वापस से शुरू हो जाती है। दे प्रोवाइड लोन्स फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टिवेशन, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, एंड ऑल्सो वेरियस अदर एक्सपेंसेस। नाउ वी विल कम टू 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, क्योंकि हम लोग लोन्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्रेडिट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी, एंड मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं वो हमने देख लिया था। सो नाउ वी आर सीइंग 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। एक लोन क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें कोई एक पार्टी लेंड कर रही है और वो बोरोवर को मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न देती है फॉर अ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपने ये लोन लिया बैंक से, आपने बोला कि ये 10 लाख रुपीज़ मुझे आज दे दो, आई विल बाई सर्टेन थिंग विद दिस एंड आई विल पे यू विद इन 10 years एट 8% इंटरेस्ट। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। आपने एक फ्यूचर पेमेंट की प्रॉमिस की जिसके एक्सचेंज में आपको 10 लाख रुपीज़ आज मिले। सो क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, क्योंकि वो गैप क्रेडिट फुलफिल करता है जो हमारे लिए एक करंट फॉर्म ऑफ मनी है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा। Now we will see 2 different credit situations, one from formal sector, one from informal sector. What is formal sector? Formal sector is something that is regulated. जैसा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मार्केट जब पढ़ा था, सो वी हैड ऑल्सो स्टडीड दैट देयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो फॉर्मल सेक्टर आपके वो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं जो कि पर्सनल नीड्स और एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स के लिए लोन्स वगैरह देते हैं, और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हैं क्योंकि ये रेगुलेटेड है एंड गवर्नमेंट हैज़ सर्टन काइंड ऑफ से इन इट। अब इनफॉर्मल सेक्टर कौन है? अगेन यू एंड मी, पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, पीपल हु आर रिच। जैसा मैंने आपको बोला कि डिपॉजिट करते हैं बैंक में लोग, ये डिपॉजिट नहीं करके इफ़ दे हैव सरप्लस मनी दे बिकम मनी लेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल हैं, इनके एरिया में हो सकता है कि फॉर्मल सेक्टर की बैंक नहीं हो, या फिर इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बैंक्स को वो नहीं हो, तो ये लोग इन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं जिनसे इट इज़ वेरी इजी बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, so they look out to money lenders, traders, employers, relatives and friends, and ये एक आपका इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ से आपको क्रेडिट की हेल्प मिलती है। बट इन दोनों सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फॉर्मल सेक्टर गिव्स यू लोन्स इन अ बेटर वे एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि मनी लेंडर्स, ये लोग कई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में फार्मर्स को देते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं बिकॉज दे नो दैट फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ वट एवर द डील इज। सो इस तरीके से ये लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फार्मर्स को लोन्स देते हैं।
नाउ वी विल कम टू क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर क्रेडिट की ज़रूरत होती है, मोस्टली इट इज़ इन द रूरल एरियाज़, बिकॉज रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादा आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं. इन लोगों के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता, बट दे रिक्वायर दैट टू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स. सो ये सारी कॉस्ट को मीट करने के लिए ये लोग क्रेडिट लेते हैं एंड देन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड ट्राई टू अर्न इट. This also helps them to invest in non-agricultural sector as well. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. अब यहाँ पे हम लोग weakness की बात कर रहे हैं credit की, कि एक जगह credit से help हुआ एक रूरल एरिया में एक एग्रीकल्चरल लेबरर को, क्योंकि वो वैसे टूल्स खरीद पाया जो कि वो अदरवाइज नहीं खरीद पाता. फॉर एग्जाम्पल, इसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है विच विल कॉस्ट हिम 5 lakhs एंड सपोज वन काइंड ऑफ मशीनरी एज वेल. तो ये क्रेडिट के थ्रू एग्रीकल्चरल लेबरर ने ये खरीद लिया. नाउ आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट ही विल बेसिकली रीपे दिस क्रेडिट. लेकिन अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इट इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ ट्रैप, क्योंकि मान लो इन्होंने क्रेडिट ले लिया 5 lakhs का. अब इनकी प्रोडक्शन है जितनी, उससे ये 3 lakhs अर्न कर पा रहे हैं. तो ये कुछ अमाउंट पे करके 2 lakhs रुपीज़ की क्रेडिट वापस पे करके 1 lakh अपने एक्सपेंडिचर में मीट किए. फिर ये 2 lakhs हो जाते हैं, प्लस इन्हें और बोरो करना पड़ता है क्योंकि अगेन ही इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 3 lakhs. तो इस तरीके से बोरो करते करते वो एक डेट की ट्रैप में फंस जाते हैं, वेर ही इज़ ऑलवेज ओइंग मनी एंड ही इज़ नेवर एबल टू गेट आउट ऑफ इट. At times, to repay this loan, farmer also sell a proportion of his land. अभी भी हमने कई farmer protest देखे with regard to a bill that may not be suitable to them, right? So this kind of issues keep coming up, farmer suicides, etc. All of this is because they are not able to repay their credit. Repayment of क्रेडिट डिपेंड्स ऑन वट एवर दे प्रोड्यूस. अगर क्रॉप हार्वेस्टिंग इनकी अच्छी नहीं हो तो ये जो लोन लिया हुआ रहता है ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में डाल देता है और यहाँ से ये लोग रिकवर नहीं कर पाते. इट बिकम्स अ वेरी पेनफुल स्टेट और वो क्रेडिट अक्यूमुलेट करते करते बहुत बड़ा हो जाता है, आफ्टर विच द फार्मर हैज़ नो वे आउट. सो दिस इज़ वन वे इन विच वी यूटिलाइज क्रेडिट. नाउ वी विल कम टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट देने के लिए, फॉर एग्जांपल बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो बैंक्स हमें जो लोन देगी उस चीज़ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो वी विल फर्स्ट चेक इंटरेस्ट रेट, वी विल चेक कोलैटरल. ऐसे ही तो लोन नहीं दे देंगे. फॉर एग्जांपल, या तो आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे या फिर आपके पास कोई ज्वेलरी है तो वो आप सबमिट करोगे. एनीथिंग दैट अश्योर्स कि भाई अगर हम फेल कर गए पेमेंट में तो यू कैन डेफिनेटली सीज दिस. कोलैटरल इज समथिंग दैट गिव्स सिक्योरिटी टू द बैंक दैट इफ इट इज गिविंग समबडी क्रेडिट एंड दे फेल टू मीट देयर फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस, देन दे विल सीज वट एवर देयर कोलैटरल हैज़ बीन रिसीव्ड. इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है जिसमें यू हैव टू प्रोवाइड योर सैलरी स्लिप्स और अर्निंग स्लिप्स एट्सेट्रा, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट कि भाई कितने ईयर्स में करोगे, कितने इंटरेस्ट पे करोगे. दैट इज़ ऑल दैट इज़ देयर इन द मोड ऑफ रीपेमेंट. सो दिस आर योर टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट सब्सटैंशियली वेरी करेगी फ्रॉम वन अरेंजमेंट टू अनदर. This will depend on who the lender is and who the borrower is. प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है, प्रॉफिट बैंक से कर रहे हो तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे. अगर वैसे बैंक से कर रहे हो जिनका मोटिव है कि भाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ करना है, रूरल पीपल को हेल्प करना है, देन यू विल हैव लेसर इंटरेस्ट रेट. सो इन दिस वे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर. कोलैटरल क्या है? ये एक एसेट होता है जो कि बोरोवर के पास होता है. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट्स एट्सेट्रा. इसको एक गारंटी की तरह यूज़ करते हैं. लेंडर को एक गारंटी देनी पड़ती है कि भाई जो ये लोन हम ले रहे हैं हम ये चुका देंगे, एंड जस्ट इन केस हम नहीं चुका पाए तो आई हैव केप्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कोलैटरल विथ यू, तो वो आप सीज कर लीजिएगा. Properties such as land titles, deposits with banks, livestocks are common examples of collateral that are used for borrowing. Now, formal and informal sector credit in India.
ये बहुत ही दुखद कहानी है दैट द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया इज़ क्वाइट लो व्हेन यू सी रूरल एरियाज। यहाँ पे मैक्सिमम लेंडिंग आपके मनी लेंडर्स के द्वारा होती है, बैंक्स की लेंडिंग बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ स्टेप्ड अप, दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग आउट इनिशिएटिव्स बाय विच देयर विल बी वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल्सो कमर्शियल बैंक्स as well as banks that are there for certain purposes to help the people in the rural areas. So इसे हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स कहते हैं। क्यों, वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब मनी लेंडर किस रेट पे दे रहे हैं ये गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, they constitute the informal sector. See the graph to understand it. You can already have a look at this graph. Formal sector loans are regulated by RBI. अगर यहाँ पे बैंक्स कोई भी इंटरेस्ट रेट ले रही है तो दैट हैज़ बीन सेट कीपिंग दी प्रिंसिपल्स और दी गाइडलाइंस दैट हैव बीन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट एक्टिविटीज़ को कोई भी सुपरवाइज नहीं करते, इट गोज़ अनसुपरवाइज्ड। सो देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी क्रेडिट एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करती है, जबकि करना चाहिए क्योंकि रूरल पीपल आर मोर प्रोन टू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इनके पास पैसे नहीं होते बट स्टिल दे गेट लोन्स एट वेरी वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर को अप्रोच करते हैं। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़, और ये लोग बहुत सारे अनफेयर मीन्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रुपए वापस लेने में। अब जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हमने बताई, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बट अगर आप रिलेटिव या मनी लेंडर से ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो बैंक्स हैव टू सी दैट दे हेल्प द पीपल इन द रूरल एरियाज और द अनएजुकेटेड पीपल टू रिसीव और टू प्रोवाइड ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड टू मेक ऑल दिस bare minimum. Okay, in that case people in the rural areas, they will be motivated to approach the formal sector because obviously इनकी terms of credit ज़्यादा beneficial है, लेकिन because of the cumbersome process, because of lack of knowledge, they are not able to avail of credit from the formal sector. To stop these unfair means of private lenders, banks and cooperatives को forward आना चाहिए and they should provide loans at cheaper rates of interest. Who gets what? So people are divided into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. यहाँ पे maximum 85% people are poor. They are taking from the informal sector, only 15% from the formal sector. Households with few assets यहाँ पे 53 to 47, and rich areas में आप देखोगे कि ये लोग मैक्सिमम अपनी लेंडिंग ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से, बिकॉज दे आर अवेयर कि यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट्स है, बहुत सारी एडवांटेजेस है एंड एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। So when they ask you in a one marker question that most of the loans or the credit that is availed by the rich households comes from the informal sector or it is an informal source of credit, it is going to be false. It is going to be false. The same is true for rural areas and the opposite is true for for the rich households. What does all of this suggest? एक तो आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि भाई फॉर्मल सेक्टर से सारी की सारी डिमांड नहीं मीट हो रही है, only half of the total credit needs of the rural people and the rest of the people. Remaining credit आपकी informal sector fulfill कर रहा है. Second, it is important कि फॉर्मल क्रेडिट को और ज़्यादा डीपली परकोलेट किया जाए और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए so that poor people also receive loans from cheaper loans, benefit from cheaper loans, because right now they are using it from the informal sector which charges them high rate of interest. तो वो दो चीज़ें आपको समझ आ जाती है when we talk about credit. Now we will come to RBI. RBI is the Central Bank of India. It is the highest authority with regard to all your financial transactions. It functions and supervises the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance. ये सारी guidelines RBI issue करता है. ये इसलिए कहते हैं cash balance को utilize करने के लिए क्योंकि banks profit earn करती है loan giving से. तो कभी कभी अगर ये कैश डिपॉजिट जो कि बैंक के पास रहती है, अगर वो लोग कुछ अमाउंट को साइडलाइन नहीं करते और अपने पास नहीं रखें, दे विल बी मोटिवेटेड टू गिव आउट लोन्स बिकॉज दे आर अर्निंग प्रॉफिट एंड कैश तो उनके पास आइडल है. लेकिन आरबीआई कहती है कि नहीं भाई 10% 15% आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट अबाउट पीपल हु वांट देयर मनी बैक.
अगर सारी की सारी डिपॉजिट आप अपनी लोन में लगा दोगे तो दिस पीपल विल नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि जब इनको डिमांड डिपॉजिट्स विड्रॉ करनी है तो ये कर सके। और बैंक्स के साथ क्या होगा कि दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू गिव लोन्स। तो वहाँ पे आरबीआई का रोल हो जाता है, एंड टू सेव ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आरबीआई इशूज गाइडलाइंस एंड कीप्स अ चेक ऑन दी बैंक्स. They monitor the bank in maintaining cash balance. They also see that the banks give loans not only to the business and traders, big businesses, but also to small cultivators, small industries, medium scale enterprises, small borrowers, etc. एंड ये सारी चीज़ें ये कैसे इंश्योर करता है, क्योंकि पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन इनको सबमिट की जाती है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स कि भाई ये अमाउंट हमने लेंड किया है, ये इन एरियाज़ में हमने लेंड किया है, इस इंटरेस्ट रेट पे लेंड किया है. तो बैंक बेसिकली सारी फंक्शनिंग उनकी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल कर दी जाती है. What is higher cost of borrowing means a larger part of the earnings of the borrowers is used to repay the loan. सो इसमें ज़्यादा आपको कुछ समझने का है नहीं. बोरोवर्स के पास लेस इनकम रहता है अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इनका लोन के लिए पेमेंट करने में चला जा रहा है. सो अमाउंट टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप. डेट ट्रैप की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है. एंड व्हाट इज़ डेट व्हेन यू ओ मनी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोरो किया तो आई एम अ डेटर, क्योंकि वो मेरे लिए एक डेट है जो मुझे रिपे करना है, एंड जो मेरे से पाएंगे वो क्रेडिटर है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. Any person who might want to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. नाउ वी विल कम टू ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. क्योंकि हमने कोऑपरेटिव्स की बात की है तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ऑफ अ कोऑपरेटिव. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे पुअर को हेल्प मिली, एंड जो ये क्रेडिट की प्रॉब्लम थी फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर फॉर द पुअर पीपल, ये एक रीजनेबल रेट पे फुलफिल किया था ग्रामीण बैंक ने. ये 1970s में स्टार्ट हुआ था. ये एक रोल मॉडल एग्जाम्पल है. इन 2018 इनके पास ओवर 9 मिलियन मेंबर्स हैं, एंड दिस हैज़ बीन स्टार्टेड इन बांग्लादेश. 1970s में एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट था ये, बट नाउ इट गोज़ बाय द नेम बैंकिंग फॉर द पुअर, एंड इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्टेन क्रेडिट एट वेरी वेरी लेस इंटरेस्ट रेट, बिकॉज पीपल हैव कम इन टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव कि भाई लोगों को हेल्प करना है. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. अब पुअर जो है उनके पास तो कोई सिक्योरिटी या गारंटी देने को है नहीं, सो इस वजह से वो लोग बैंक लोन्स नहीं ले सकते. ऑल्सो बैंक्स हर जगह प्रेजेंट नहीं है रूरल इंडिया में, एंड जब वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है लेना वो लोन. दैट इज़ वाई इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन्स ले लिए जाते हैं इन द रूरल एरियाज़. इनफॉर्मल लेंडर्स विदाउट कोलैटरल भी लोन्स दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी विल एनी वे बी एबल टू गेट आवर मनी बैक. इफ़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी तो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सीज कर लेंगे. Almost all of the borrowers are women from the Grameen Bank, and they belong to poorest sections. These borrowers have proved that poor women are not just reliable borrowers, but वो लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी जनरेट कर सकती हैं जो कि उनको इनकम प्रोवाइड कर सके. सो ग्रामीण बैंक में ऑल दिस वेमेन दे हैव कम टुगेदर, दे हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ कीपिंग देयर फंडिंग इनटू कंसिडरेशन, एंड वहाँ पे दे नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ मनी. और जब इनको ज़रूरत होती है तो ये लोग उठा भी लेते हैं और रिपे भी कर देते हैं, बिकॉज दे हैव दैट कैपेसिटी. Similar example of a cooperative is a self-help group. These are also voluntary. Voluntary मतलब wishfully बनाए जाते हैं. Small associations है of poor people. For example, आपके घर में जो domestic maids आएंगी आप उनसे पूछिएगा, उनके areas में भी ये चलता है. All these maids, they will pull in money, for example 15 to 20 people. They belong to a bad socio-economic background. They come together voluntarily कि हम लोग महीने में 500 रुपए इस कोऑपरेटिव को या सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे. एंड देन अ मेंबर नीड्स 1500, तो वो उस पूल से उठा लेंगे, एंड देन दे विल अगेन पुट इट बैक इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप. Decisions regarding savings and loan activities. Most of the important decisions regarding savings and loan activities from SHGs are taken by the group members. ये डिसाइड करती है कि कितना लोन ग्रांट करना है,
किस पर्पज़ के लिए करना है, किस अमाउंट के लिए करना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और कैसे रीपे किया जाना चाहिए. ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. फॉर एग्जाम्पल कृषक कोऑपरेटिव में हमने देखा था बैंक से लोन ले लिया. अब बैंक वो इंडिविजुअल के पास नहीं जाएगी जिसको कृषक ने लेंड किया है, ए बी के पास नहीं जाएगी पैसे मांगने के लिए. बैंक को कौन रीपे करेगा? कृषक कोऑपरेटिव. सिमिलर विद द अदर एसएचजीज. They come together for the purpose of solving their common problems through the principle of self-help, खुद को हेल्प कर रहे हैं, और mutual help because they are coming in together. It also helps to promote small kind of savings among its members, and these savings are kept with the bank. Any case of non-repayment by one member is followed up seriously by other members क्योंकि ये cooperation basis पे चलती है, mutual interest के basis पे चलती है. बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स लेंड करना चाहती हैं पुअर वुमेन को जो कि एसएचजीज में है, क्योंकि बैंक्स को पता है कि एसएचजीज अपनी फॉर्मेलिटी को फुलफिल कर लेगी. तो ऑल्दो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कोलैटरल, वो उस एसएचजी के बेसिस पे बैंक उनको लोन्स दे देती है. What is another important thing about SHGs? They overcome the problem of lack of collateral. अब ये जो पुअर वुमेन है ये डायरेक्टली बैंक के पास जाती तो इनके पास कोलैटरल नहीं था टू सर्व एज गारंटी. व्हाट इज कोलैटरल? एनी काइंड ऑफ एसेट. लेकिन अगर ये एसएचजी का पार्ट है तो एसएचजी ने बैंक से ले लिया, और यही सीता जो है ये इंडिविजुअली लोन नहीं ले पाई, बट ये यहाँ से एसएचजी से लोन अब ले पाएगी क्योंकि बैंक ने एसएचजी को प्रोवाइड कर दिया है और एसएचजी ने बैंक को गारंटी दे दी है. सीता के पास कोलैटरल नहीं था, एसएचजी के पास नहीं था, फिर भी बैंक ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया बिकॉज इट इज सीइंग दैट इट इज़ अ मेंबर एंड इट कैन फुलफिल, लाइक यू नो, it has members and it can fulfill its payment obligations. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor. It also helps in saving for the poor people. It helps women become financially self-dependent. Regular meetings also provide them solutions for various kind of social issues. 15 महिलाएं मिलेंगी तो वो लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. Anything that has to do with health, nutrition, domestic violence issues, those will be discussed and solutions will be found out. So this kind of advantages exist when we talk about SHGs. With that, we come to the end of this chapter. That's all there is in this chapter, and I hope we have become very, very clear with it. Whatever there was, I have told you. कुछ भी doubts होते हैं, please use the comment box. Study very hard for your examination, guys. And all the very best. I'll see you with the next set of lessons. Till then, take care and bye-bye.